Hello students, welcome in your science class. I am Kapsem is here for making your science easy. Look this picture my dear students. What is this? This is a fish which live in water. Now can you guess which animal is this? Yes, this is crab and it also lives in water. Both the animals lives in water, but they have many differences between them. Fish have gills. They have slender body. But crab do not have gills and do not have slender body. It means though they live in water, there are many differences between these two animals. Plants also have many differences between them. They have different shapes, size, flowers, fruits, and many other differences. Human beings also have many differences between them. The difference in their shape, size, their personalities, and many other things. These differences between living things is called as diversity. And our today's topic is diversity in living things and their classification. Can you tell in which sphere of the earth do living things exist? Okay, the geographical condition at different places on the earth are very different. We find that living things exist in all these diverse conditions. There are many differences in the places on the earth. अर्थ के सभी जो प्लेसेस है, हमने ये अर्थ का ग्लोब देखा है, आप सोशल में ये स्टडी करते हैं ना, तो यहाँ पे आपने देखा है अर्थ पे जो प्लेसेस है उनमें डिफरेंसेस है. ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है डिफरेंट प्लेसेस के, और उन सभी थिंग्स पे, उन सभी प्लेसेस पे लिविंग थिंग्स मे बी प्लांट और मे बी एनिमल एग्जिस्ट करते हैं. और वो जो वहाँ पे जो एनिमल्स या प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं वो उस सराउंडिंग से एडजस्ट करते हैं. Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the condition in their surrounding. जो उस कंडीशन में एडजस्ट कर सकता है वही वहां पे सरवाइव होता है, अलाइव रहता है. यस, नाउ can you tell, are the plants and animals that you have seen all alike? Definitely no. Yes, they are different with each other. And these differences are called as diversity. Various types of plants are found in many places around us. Some plants like tulsi, rose, neem, grass, they are short, while others are tall like coconut tree, pine tree, and they have canopy about them. Some plants grow under water while some plants float on water. We find that some plants grow even in desert like cactus and aloe vera. Moreover, we find that there is a lot of variety
in some type of plants. For example, there are different varieties of rice, wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. Some plants grow even without stem, leaves or roots. These are very different from ordinary plants. Let's study this diversity among plants. Plants make their own food in sunlight. Such plants are called autotrophic plants. जो प्लांट्स सनलाइट में खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रोफ्स. प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स. कैसे बनाते हैं ये फूड? सनलाइट की हेल्प से. सनलाइट के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनके रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल के हेल्प से वो लीफ के अंदर फूड प्रोड्यूस करते हैं. और जो प्लांट फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रोफिक प्लांट्स. ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, hibiscus, pomegranate, periwinkle. These are some plants that are autotrophic. या फिर आपके आसपास जो भी ग्रीन प्लांट आपको दिखते हैं वो सभी प्लांट्स ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैं. यस, बट some plants do not produce their own food. They depends on other plants for their food. जैसे कि इस ग्रीन वाले प्लांट पे आपको जो येलो थ्रेड्स दिख रहे हैं वो थ्रेड्स नहीं है, वो है वन टाइप ऑफ प्लांट जो इस ग्रीन प्लांट पे ग्रो हुआ है. ये जो प्लांट है ये उसके फूड के लिए इस ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है. मीन्स इट इज हेट्रोट्रोफिक प्लांट. प्लांट लाइक फंगस, लोरैंथस, डॉडर use other plants for food and they are called heterotrophic plants. Now there are some plants like pitcher plant. They eat insect that sit on them. pitcher plant ये जो है ये उस पे जो इंसेक्ट बैठता है उस इंसेक्ट को वो ईट करता है. और ऐसे जो प्लांट्स है जो इंसेक्ट को ईट करते हैं उन्हें बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. These plants are called as insectivorous plants. They depend on insects or they catch insects for their feeding. Now let's see the structure of plant. Plant structure can generally be divided into two parts. The stem which grows above the ground and the root which grows below the ground surface. The root, stem and leaves are the main parts of plant. From time to time, plant bear flowers for reproduction. Flowers are transformed into fruits. Fruits have seeds. Seeds give rise to new plants. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्लांट का, यहाँ पे आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड
फ्रूट। रूट, स्टेम और लीफ ये जो है ये मेन पार्ट ऑफ द प्लांट है। और फ्लावर्स जो है वो टाइम टू टाइम ग्रो होते हैं। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर्स को प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट्स। वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। फ्लावर्स का फ्रूट बन जाता है और उस फ्रूट में होते हैं सीड्स, और सीड्स से हम लगा सकते हैं नया वाला प्लांट, या फिर उस सीड से उस प्लांट का नया प्लांट बनता है। Now we will see these parts of plants one by one. Let's talk about roots of the plant. Roots hold the soil firmly and anchor the plant. Roots जो है वो soil को firmly एक जगह पर रखते हैं और प्लांट को ग्रो करने में, एक जगह पे ग्रो होने में हेल्प करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इस रूट का मेन फंक्शन क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करना और उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करता है क्या ये रूट? नहीं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स को भी ये एब्जॉर्ब करता है, जिन्हें बोला जाता है मिनरल्स। द रूट्स ऑफ द कैरेट एंड रेडिश also store food. There are two types of roots, taproot and fibrous root. रेडिश और कैरेट जो हम ईट करते हैं वो वन टाइप का रूट है। इस रूट के टू टाइप्स है, कौन से? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। लेट्स सी हाउ आर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट के एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं, हिबिस्कस, बनियान। एंड फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल बताए गए हैं, ओनियन एंड ग्रास। अब ये जो कैरेट एंड रेडिश हम ईट करते हैं वो कौन से टाइप का रूट है? दैट इज टैप रूट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेम ऑफ द प्लांट। द हाइट, शेप and size of a plant depend upon the stem. स्टेम के हाइट, शेप और साइज के हिसाब से ही प्लांट की हाइट, शेप और साइज होती है। The stem carries out the function of production, conduction and storage of food. ये जो स्टेम है ये डिफरेंट फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। कौन कौन से? प्रोडक्शन भी करता है, किसी प्लांट में ये प्रोडक्शन करता है, किसी किसी प्लांट में ये कंडक्शन करता है, और किसी प्लांट में ये फूड को स्टोर करता है, इसलिए स्टोरेज का भी ये फंक्शन करता है। इन सम प्लांट्स इट हैज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। कुछ प्लांट में ये रिप्रोडक्शन का भी वर्क करता है। प्रोडक्शन किस में करता होगा? डेजर्ट में जो प्लांट्स आते हैं जैसे कि कैक्टस, हमें मालूम है कैक्टस जो है वो अपने लीव्स को स्पाइन बना देता है। उनके लीव्स के स्पाइन बन गए होते हैं, कांटे, और उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और उसी स्टेम में वो फूड प्रोडक्शन करता है। फोटोसिंथेसिस का वर्क जो है कैक्टस प्लांट का वो उसके स्टेम में होता है। यहाँ पे उसने प्रोडक्शन का वर्क किया। देन स्टोरेज ऑफ फूड, किसी प्लांट में वो फूड को स्टोर करके रखता है, जैसे कि शुगर केन है। शुगर केन के स्टेम में ही शुगर स्टोर्ड होती है।
यस, हम ईट करते हैं गन्ने का जूस, यस, शुगर केन का जूस हम ड्रिंक करते हैं, फेमस है ना। वो कहाँ से निकलता है? उसके स्टेम में से, मीन्स वो फूड को स्टोर करता है उसके स्टेम में। किसी किसी प्लांट में वो रिप्रोडक्शन का भी वर्क करता है, जैसे कि पोटैटो। पोटैटो ये जो है वो स्टेम है। पोटैटो प्लांट का जो पोटैटो हम ईट करते हैं वो उस प्लांट का स्टेम है। और पोटैटो का प्रोडक्शन कैसे होता है? पोटैटो को ही डाला जाता है सॉइल में, है ना, और उससे बनते हैं मेनी पोटैटोज। तो प्रोडक्शन का भी वो वर्क करता है। इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब मेन फंक्शन जो है स्टेम का वो क्या है? गिव सपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो अदर पार्ट्स है जैसे कि लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, इन पार्ट्स को सपोर्ट करना ये मेन फंक्शन है स्टेम का। अब हम डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में। द लीफ इज फ्लैट। It plays an important role in the production of food. लीफ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और लीफ मेन फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है प्लांट में, वो है फूड प्रोडक्शन का, जिसे कि बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है वो चलता है लीफ में, ग्रीन लीव्स में। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। लीव्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। ये जो आप देख रहे हैं नीचे डायग्राम्स, ये है सिंपल लीफ। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, हिबिस्कस, पीपल, बनियान, इन प्लांट के जो लीव्स है वो है सिंपल लीफ। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कंपाउंड लीफ का। कंपाउंड लीफ फॉर एग्जाम्पल रोज के लीफ आप देख सकते हैं, रोज के लीव्स, या फिर नीम के लीव्स आप देख सकते हैं। नीम जो है वो एक लॉन्ग स्टिक होती है और उस लॉन्ग स्टिक को दोनों साइड से लीव्स होते हैं, छोटे छोटे लीव्स। या फिर आप टैमेरिंड मीन्स इमली, इमली के लीव्स देख सकते हैं, छोटे छोटे लीव्स, एक लॉन्ग स्टॉक को वो छोटे छोटे लीव्स जो है आते हैं, वो है टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, हम सभी को फ्लावर्स पसंद है। यस, इट इज connected to the stem by a stalk which may be long or short. स्टेम को, ये फ्लावर्स लगे वाले होते हैं, स्टेम से फ्लावर तक एक लॉन्ग स्टिक होती है, लॉन्ग या शॉर्ट हो सकती है, उसे बोला जाता है स्टॉक। जैसे कि रोज फ्लावर में हम देखते हैं, फ्लावर होता है, उसके नीचे एक लॉन्ग स्टिक होती है, उसे बोला जाता है स्टॉक। अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड शेप। द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है, जो अभी मैंने आपको बताया था। फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फ्लावर की वजह से ही प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। अब आप बोलेंगे मिस सीड से नया प्लांट बनता है, मतलब सीड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन ये सीड आते कहाँ से है? ये फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और उसमें, उस फ्रूट में सीड्स होते हैं। जब नेक्स्ट ईयर आप इस फ्लावर से फ्रूट कैसे बनते हैं ये सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ
plant. Now let's see about fruit. Fruits have different shapes. Fruit contain one or more seeds. The pods of beans and peas are actually fruits. फ्रूट जो है वो डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिफरेंट टेस्ट होती है फ्रूट की. फ्रूट में सीड्स होते हैं. किसी सीड में 1 सीड हो सकती है, किसी में थोड़े से सीड होते हैं, 5, 6, 7, 8, और किसी फ्रूट में मेनी सीड्स होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि पपैया में, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स निकलते हैं. लेकिन मैंगो में 1 ही सीड होती है. जुजुबी मीन्स बेर, उसमें भी 1 सीड होती है. रोज एप्पल मीन्स जामुन, उसमें भी 1 सीड होती है. और कुछ फ्रूट्स में जैसे कि एप्पल, चीकू, इसमें कुछ सीड्स निकलते हैं. चीकू में कभी 2, 3 या 4 सीड्स निकलते हैं. एप्पल के भी सीड्स काउंटेबल होते हैं. 6 या 8 सीड्स निकलते हैं एप्पल में से, या फिर 10 या 12 निकलते होंगे, है ना. आप काउंट करके देख सकते हैं. लेकिन पपाया और वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स निकलते हैं. गवा में बहुत सारे सीड्स होते हैं. पोमीग्रेनेट में उसके हर दाने में सीड है बोले तो वहां पे भी मेनी सीड्स हमें मिलते हैं. क्या we have seen all the parts of the plant, और ये पूरे पार्ट्स आपको आपके बुक में दिखाए गए हैं और इसकी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी है. आपका आज का होमवर्क यही है कि आप ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ड्रॉ करेंगे आपके नोटबुक में अच्छे से. उसे आप कलर भी कर सकते हैं, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये 1 बाय 1 लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई. पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, फिर फ्लावर एंड लास्ट में फ्रूट के बारे में आपको लिखना है. इट इज योर टुडेज होमवर्क.